Hello and welcome to the current affairs module with me, Kinkini Mukherjee. So in that section, as we have discussed that 19 November से हम लोग basic biology का discussion करेंगे and current affairs related to that. So this is the session we are starting with it. So it is today about the basic biology, right? So firstly, let's look into some basic facts. So first thing which I would like to mention here is that Robert Hooke discovered cell. Okay, Robert Hooke discovered cell. How it actually happened. So he was observing cork. What is a cork? Cork क्या होता है कि जो एक wooden जिससे लॉक किया जाता है कोई बॉटल को, दैट इज अ कॉर्क, है ना. तो दैट इज एक्चुअली सेलुलोज उसमें होता है प्लांट सेल एंड दैट ही पुट एंड ही ऑब्जर्व द सेल. ठीक है, तो दैट वाज अ डेड सेल बिकॉज कॉर्क यू कैन अंडरस्टैंड वो प्लांट का part tha, and then right now it is a dead cell. So Robert Hooke observed or discovered cell first time and it was from a cork. Okay. Second thing is that the first live cell was observed by Antony van Leeuwenhoek. So Antony van Leeuwenhoek was the first person to observe a live cell. Then the nucleus, that is the place where the genetic materials are stored, right? And what are the genetic materials? It can be anything, be it DNA, and in some cases it can be RNA also. But in case of most species, and especially the eukaryotic cells, it is the DNA. So वो किसने डिस्कवर करा था? It was discovered by Robert Brown, है ना? So देखो टाइप्स ऑफ सेल अगर हम लोग देखेंगे, सो टाइप्स ऑफ सेल के अंदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होगा. सो प्रोकैरियोट्स प्रो, ठीक है, तो दे आर द ओल्डेस्ट सेल. ठीक है, एंड दे आर वेरी स्मॉल. दे आर जस्ट 0.1 to 2 माइक्रोमीटर उनका साइज होता है. ओके, so they are very very small. Second is the eukaryotes. They are large. They are large. We are eukaryotic cells. So we'll come to the example. They are large as in कितना होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर, 10 से 100 माइक्रोमीटर इनका diameter हो सकता है. So see, they are not having a nuclear membrane. जैसे हमने कहा कि there is the cell. ठीक है, सेल के बाद क्या होता है? सेल है, इसमें एक मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म. Okay, and in this, in case of prokaryotes, there is no nuclear membrane. मतलब इसका जो genetic material होगा वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में, मतलब इस मैट्रिक्स में ऐसे ही तैर रहा है. Unlike in case of the eukaryotic cell, जहाँ पे there is the presence of the membrane bound nucleus. ठीक है, तो membrane bound nucleus इसमें होगा. So इसका जो genetic materials है, these are very confined. So इसके चलते डिफरेंस आ जाती है इन दोनों में, विच आई विल कम टू. देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के चलते व्हाट हैपेंस विद द प्रोकैरियोट इज दैट, देखो प्रोकैरियोट का एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, सो एग्जांपल्स आर लाइक बैक्टीरिया. ओके, एंड आपने अभी रिसेंट न्यूज में देखा होगा कि द बैक्टीरियाज हैज बिकम रेजिस्टेंट टू अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो इसका वजह यही है कि उनका जो न्यूक्लियस है that is not membrane bound, and for that reason इसमें म्यूटेशन होना लाजमी है. म्यूटेशन होता रहता है. अनलाइक इन द केसेस ऑफ यूकैरियोट्स, इसमें भी म्यूटेशन होगा, चेंजेस आएंगे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है. बट यहाँ पे बहुत इजी म्यूटेशन ऑफ डीएनए. म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए क्या है? डीएनए इज द मेकअप ऑफ अ सेल, है ना. मेकअप मतलब कि वो क्या प्रोटीन्स देगा, वो क्या चीज़ें करेगा. जैसे इन केस ऑफ द कोविड-19 ऑल्सो वी वर सेइंग डिफरेंट स्ट्रेन्स वेर कमिंग. डिफरेंट स्ट्रेन वहीं पर आना पॉसिबल होता है जहाँ पे आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा इनकैप्सुलेटेड नहीं होता. ओके, then there is the absence of nucleolus, and in this case, in case of the eukaryotes, there is the presence of the nucleolus. ठीक है, and nucleolus क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे. Just right now for this, just remember that is the absent, and in the eukaryotes it is present. In the prokaryotes there is a single chromosome. Chromosome is what? जो DNA आपका ऐसे करके बना हुआ रहता है. And in case of eukaryotes, there are more than one chromosome. Okay, how many chromosomes are present in humans?
आपका होमवर्क है, and write it in the comments. Further, I would say next day we will discuss it also. जब हम लोग biotechnology discuss करेंगे, but for now you have to search it and write it in the comment. Okay. So absence of membrane bound organelles. जैसे कि हमने देखा, the nucleus is not membrane bound. Neither is the other organelle. सेल जो हो गया वो एक सेल हो गया, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीजें रहते हैं. Okay. So this in case of prokaryotes are not bound. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर बाउंड. ठीक है, मतलब कि उसमें कॉम्पैक्ट है, वो बाहर नहीं चला जाएगा उसमें. केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सिंस दिस प्रिमिटिव सेल्स, पुराने टाइप के सेल्स है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट बाउंड. सो दिस सेल डिवीजन कैसे होता है? बाय फिशन और बडिंग. फिशन क्या है कि जैसे कुछ है, जैसे आपका बैक्टीरिया, दिस इज काइंड ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एक बैक्टीरिया के सेल से आपके डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना. सो दिस इज दी आई मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज बाय फिशन और बडिंग. बडिंग का मतलब है आपने उसको कट कर दिया, फिर भी वो ग्रो कर गया टू अनदर सेल. ठीक है. सेल डिवीजन बाय मिटोसिस एंड मियोसिस. सो आई विल गिव अ ब्रीफ मतलब अंडरस्टैंडिंग कि मिटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है. सो मिटोसिस इफ वी सी, मिटोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है, एक पेरेंट सेल होता है, उससे दो सेल फॉर्म्स होते हैं. ओके, दो सेल फॉर्म होता है, एंड बोथ द सेल हैज आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, आइडेंटिकल डीएनए सेट्स. इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल से चार डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, एंड ऑल आर having different genetic makeup because of recombination, which we will see in when we will do the biology part. So meiosis is for गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो स्पर्म सेल हो, दैट काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज अंडर मियोसिस. एंड मिटोसिस क्या हो गया, जैसे कि सेल कहीं ब्रेक हो गया बॉडी में, एंड वहां पे अगर जैसे मेरे हाथ में कट हो गया, वहां पे सेल ग्रो करेगा, तो दैट विल हैपन बाय मिटोसिस. बट इन केस ऑफ मियोसिस द प्रोसेस इज डिफरेंट. मियोसिस कब होगा? व्हेन reproduction is happening, right? That is why genetic makeup of each individual in humans or another mammals is different. समझ में आ रहा है? Meiosis is for gamete formation, for the formation of another species, I mean another person or another animal in that same species. And mitosis किसके लिए है? मान लीजिए कि हाथ कट जाता है, ऐसा कोई इंजरी आता है, तो उसमें बॉडी में जो सेल्स वापस से बनेंगे. So all are identical, and that is the mitosis. Okay. Now, eukaryotes में क्या है? There is the presence of mitochondria, and in case of prokaryotes, there are no mitochondria. Okay, so functions of mitochondria will be covered. जैसे nucleus and mitochondria we will do. Now, the examples under prokaryotes are bacteria and archaea, and under eukaryotes जैसे कि we will see plants, animals, fungi and proteins. So this also shows that देखो prokaryotes का जो reproduction है, that is always asexual. But in case of eukaryotes, it can be both sexual by the formation of gametes. How? By meiosis. By meiosis, or by the formation of asexual अगर होगा, by the formation of daughter cells by mitosis. Okay, but in case of this prokaryotes is always asexual. Now, bacteria जो था, that is the most primitive organism you can see. After that जो develop हुआ वो है archaea. तो archaea जो है वो archaea is somewhat a connection between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. तो archaea के बहुत सारे functions जो है वो bacteria से भी मिलते हैं, और मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, और कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक से भी मिलते हैं. बट इसका अगर सेल स्ट्रक्चर हम लोग देखें, सिंस इट्स नॉट हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इट्स नॉट हैविंग द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, और इट इज हैविंग सिंगल क्रोमोसोम, इसलिए उसको हम लोग एज प्रोकैरियोट मानते हैं. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि सेल का स्ट्रक्चर दोनों में कैसे डिफरेंट होता है. एज आई सेड यू, this cell of eukaryote which is very complex in nature, जो आपको दिख रहा होगा in the picture also, and the prokaryotes being the primitive kind of organisms is simple. तो देखो UPSC has time and again asked you questions like marsupials and other things. They have asked you about
camels and this all things. And they have also asked you about mushrooms as in fungi, and asked you about viruses. So हो सकता है due to the MDR, that is drug resistances in the bacteria and other things, they may ask you कि prokaryotic cell, because that is the reason कि इतना genetic mutation bacteria में होना इतना easy होता है. So such thing could also be asked in the recent times. So you must know that prokaryotic cells are bacterial cells are prokaryotic cells. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, सो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सिमिलरिटीज भी है, वो वहाँ हमने डिसिमिलरिटीज तो देख लिए थे, बट सिमिलरिटीज हम लोग पर देख लेते हैं. ठीक है, सिमिलरिटीज इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों का है. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन है जो सेल को एनकैप्सुलेट करता है एंड सेल वहां से मतलब निकल नहीं सकता. ठीक है, देन यू कैन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है एंड वो यहाँ पर भी है. राइट, राइबोसोम्स बोथ हैज, राइबोसोम से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आगे लिखेंगे हम लोग. सो दिस आर द थिंग्स. सेल वॉल जो है इट इज रिटन सम हैव इट एंड सम डोंट. जैसे कि सेल वॉल जो है वो है कि आपका जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एक वॉल जैसा होता है, दिस प्रोवाइड्स रिजिडिटी. ठीक है, रिजिडिटी टू दिस सेल. सेल वॉल यूकैरियोट्स में भी है, जैसे प्लांट्स में देयर इज द सेल वॉल. ओके, वी विल सी. बट तीनों का कॉम्पोजिशन, बी इट बैक्टीरिया, बी इट प्लांट और बी इट फंजाई, तीनों का कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट. बट सेल वॉल का एक्टिविटी क्या है, सेल वॉल का एक्टिविटी ये है कि वो रिजिडिटी देगा सेल को. एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन. जैसे हमारा सेल है उसमें सेल वॉल नहीं है ह्यूमंस का या कोई भी मैमल का आप लीजिए, तो क्या होता है उसके चलते देयर इज दिस सॉफ्टनेस इन द सेल, राउंड होता है एंड रिजिड नहीं होता है सेल. Unlike the cell of the bark of a tree, which has a cell wall and it is very rigid. उससे क्या होता है कि evaporation, transpiration ये सब चीजें घट जाती है to conserve the water and the nutrients, right? And in case of bacteria, they have the cell wall. ठीक है? And in case of plants also, they have the cell wall. So that is why it is written in some eukaryotes, it is present. Okay? So this is about it. Now let's move to the next slide. देखो, सेल ऑर्गेनेलिस को लेट्स सी. सो सेल ऑर्गेनेलिस को तीन पार्ट में वी कैन डिवाइड. ओके, देखो इसको बहुत ब्रीफ में समझना है, यू डोंट नीड टू गो इनटू मच डेप्थ. ओके, एनसीईआरटी का बुक या वैसे भी मतलब दो एनसीईआरटी के बुक में सारे ऑर्गेनेलिस दिए हुए नहीं है, बट यू कैन जस्ट रेफर टू दैट ऑल्सो. एंड हियर एक्चुअली दिस मच इफ यू डू, दिस इज मोर देन इनफ फॉर सेल एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो सेल ऑर्गेनेलिस विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट. ओके, सो व्हाट इज द मेम्ब्रेन? जैसे कि मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन है ना, बट सम ऑर्गेनेलिस आर देयर. जो सेल है, सेल के अंदर में कुछ ऑर्गेनेलिस है जो ऐसे फ्री फ्लोटिंग है. जैसे अगर आपने लास्ट पिक्चर में देखा होगा, सी दिस आर फ्री फ्लोटिंग, दिस आर राइबोसोम्स एक्चुअली. ओके, सो राइबोसोम्स देखो यहाँ पे लिखा है, दिस आर राइबोसोम्स एंड दिस आर फ्री फ्लोटिंग एंड दिस इज सेम इन केस ऑफ द eukaryotes. These are also not membrane bound. So it is same in case of prokaryotes or eukaryotes. So first is ribosomes. So ribosomes are cellular structures involved in the protein synthesis. They are composed of RNA and proteins, and they are responsible for translating genetic information from the mRNA, that is the messenger RNA, into proteins. Ribosomes can be found free in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. While they are not surrounded by a membrane, they are essential for protein production in both prokaryotes and eukaryotes. Now देखो यहाँ पे तीन चीजें हम लोग समझ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइबोसोम्स आर सेल्यूलर स्ट्रक्चर. दे आर द ऑर्गेनेलिस ऑफ सेल जिसके थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स होता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस हैपेंस बाय राइबोसोम. फर्स्ट थिंग इज दिस. देन व्हाट दे आर सेइंग, दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए. मतलब देखो एमआरएनए, mRNA is what? The messenger RNA. So messenger RNA is what? DNA जो होता है हमारे बॉडी के अंदर. We will see it also in more details. For right now, to understand ribosome, you need to understand. तो DNA जो आपका होगा, तो इसमें क्या होगा कि हमें अगर ट्रांसक्रिप्शन करना होगा. ठीक है, what is ट्रांसक्रिप्शन? कि DNA का जो स्ट्रैंड है और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो RNA के स्ट्रैंड में चला जाएगा, so that the production of protein can happen. So this was a DNA strand.
दिस इज द टोटल डीएनए। इसमें से एक डीएनए का स्ट्रैंड ऊपर वाला मान लो चला गया, देन इसमें एक आरएनए बनेगा, वो सिमिलर होगा टू द डीएनए, राइट? And this particular thing will go to the ribosome. It is called the mRNA, and it will lead to the production of protein. Okay, so mRNA with ribosome or under the work of ribosome is responsible for the production of protein. तो इसमें आप एक चीज समझो, इसके पहले भी यूपीएससी ने पूछा है that what is the work of mRNA. ठीक है, जैसे हम लोग बेसिक बायोटेक देखेंगे तो वहाँ पे डीएनए, एमआरएनए, आरएनए वगैरह समझेंगे, बट सिंस वी आर स्टडिंग राइबोसोम तो आपको ये चीज अच्छे से समझ लेना है कि राइबोसोम वर्क्स इन सिंक विथ mRNA and produces what? Proteins. What are proteins? Proteins are chemicals which are amino acids, right? Amino acids are proteins. ठीक है, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं. चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कल्बिनेट इनटू प्रोटीन. सो व्हाट इज प्रोटीन एंड क्यों जरूरत है? देखो, जैसे कि इफ माय हेयर कलर इज ब्लैक, है ना, एंड योर हेयर कलर इज सपोज ब्राउन, तो डिफरेंस क्या है कि मेरे बॉडी में जो प्रोटीन है ड्यू टू दी जेनेटिक मेकअप, और आपके बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ड्यू टू दी जेनेटिक मेकअप, इट इज डिफरेंट. सो दैट इज द डिफरेंस what the proteins make. And how do they make it? They make it with the help of this formation by the ribosome, है ना. So ribosomes are for protein synthesis. And also यहाँ पे आप समझो कि डीएनए से ही हम लोग उस प्रोटीन को निकाल सकते हैं. मतलब डीएनए बोलेगा कि ये प्रोटीन बनना है थ्रू दी मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर का मतलब क्या है? दे आर अ मैसेंजर टेलिंग द राइबोसोम टू मेक सच एंड सच टाइप ऑफ प्रोटीन. और वो प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा तो जेनेटिक मेकअप चेंज होते रहेगा, जैसे आई कलर चेंज हो सकता है, हेयर कलर चेंज हो सकता है, ऐसी चीजें. ओके, सो नाउ राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्री इन दी साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज द मैट्रिक्स जो सेल में है ना, जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं. सो दे कैन बी फाउंड फ्री, मतलब जैसे मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलेंगे. ऑल्सो दे कैन बी फाउंड अटैच टू द ईआर. सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी अटैच हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग. सो एक ऑर्गेनेल से भी अटैच हो सकते हैं या मैट्रिक्स में ऐसे फ्री फ्लोटिंग भी मिल सकते हैं. Now the second thing we will study, which is having no membrane, is centrioles, right? We are studying the organelles which are having without, which are existing without any membrane. So centrioles क्या है? Centrioles is cylindrical structure found in animal cells. First of all, usually in pairs near the nucleus. Nucleus जो है वहाँ पे ये पेयर में मिलता है. Okay? They are play a crucial role in organizing the microtubules during cell division, forming the mitotic spindle. जैसे हम लोगों ने mitosis पढ़ा, right? That is what कि one cell से two daughter cells form हो रहे हैं. So जब formation हो रहा है, देखो, जब फॉर्मेशन हो रहा है तब क्या प्रोसीडियर होगी कि ये जो चीज है इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, कि ताकि जो आपका डीएनए है वो प्रॉपरली दोनों में जाए. जो डीएनए है सेल का वो प्रॉपरली दोनों में जाए. वन ऑफ द सेल, वन ऑफ द डॉटर सेल डज नॉट सफर because the either is getting formed or the both should be identical. and उनमें जो आपका शेप को रखेंगे, एक शेप होता है सेल का, उसको रखना पड़ेगा. at that time what works is the centrioles. इसीलिए वो न्यूक्लियस के बाजू में ही प्रेजेंट है, so that it can do that part when the formation of daughter cells is going on. And here see, they are saying in organizing microtubules. What is the work of microtubule? Microtubule are tiny tubular structure in cell that act like cellular scaffolding. Scaffolding का मतलब क्या है कि वो उसमें एक skeleton जैसा काम करता है. ओके, जैसे सेल है उसमें एक skeleton जैसा काम करेगा ताकि दो डॉटर सेल फॉर्म हो सके और दोनों डॉटर सेल वायबल हो, राइट? दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दोनों में इक्वली जाए, ऑल्सो दोनों का स्ट्रक्चर प्रॉपर रहे, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, गाइडिंग इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन. ठीक है, समझ में आ रहा है कि दोनों जो डॉटर सेल्स है उनका जो फॉर्मेशन है वो सिमिलर लाइंस पे हो. दैट इज व्हाट
दिस सेंट्रियोल्स वर्किंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स ensure. ठीक है, ओके. सो सेंट्रियोल्स अगर आपको पूछा जाएगा, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग मिटोसिस. ओके, सो दिस इज अबाउट सेंट्रियोल्स. क्योंकि जब मिटोसिस होता है तो डायरेक्टली दिस सेल डिवाइड्स, दिस सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, जैसे आपने बैक्टीरिया में भी पढ़ा होगा, वन सेल टू टू डॉटर सेल्स. सो दैट टाइम वी नीड सम स्ट्रक्चर टू सपोर्ट. सो दैट इज द वर्क ऑफ दैट. नाउ हमने देखा था कि प्रोकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियोलस नहीं है. ठीक है. So what is a nucleolus? See, the nucleolus is a dense region within the cell nucleus and it is involved in the production of ribosomes. See, very important, isn't it? While it is not surrounded by a membrane, it is also not surrounded by a membrane. It consists of proteins, RNA and other molecules. जैसे लिपिड ये सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब फैट्स एज इन लिपिड्स. The nucleolus plays a key role in ribosome assembly, which is essential for protein synthesis. So राइबोसोम कहाँ से बन रहा है ना. दिस इज ऑल्सो फैक्टर. क्योंकि देखो एट द एंड जो भी जेनेटिक एक्सप्रेशन हो रहा है, सेल का पर्पस क्या है? सेल का पर्पस है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और हर चीज का कुछ कुछ वर्क है. ठीक है. सो सेल का पर्पस क्या है? पहले तो एनर्जी देना बॉडी को, देन देर इज दी प्रोटीन सिंथेसाइज करना, सो दैट किस टाइप का एक्सप्रेशन होगा, हाथ पैर कैसे बनेगा एक बच्चे का, हार्ट कैसे बनेगा, हेयर का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें the genetic makeup of the cell ensures, right? So in that context, न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है? न्यूक्लियोलस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम. क्योंकि विदाउट राइबोसोम, यू नो दैट द मैसेंजर आरएनए से जो इंफॉर्मेशन आएगा जेनेटिक मेकअप का, वो कहीं भी ट्रांसफॉर्म टू प्रोटीन नहीं हो पाएगा. एंड प्रोटीन से हम लोग को पता चलेगा कि व्हाट कैन बी द features of a person, right? Then comes the cell wall. So cell wall serves as an additional layer of structural support, providing rigidity to the cell and protecting from the external pressures. जैसे कि हमने बोला, there is lack of, मतलब मान लीजिए कि मतलब lack of अगर cell wall हो तो ऑस्मोसिस जैसे इश्यूज हो सकते हैं, राइट? ऑस्मोसिस मतलब कि प्लांट्स के जो सेल्स है वो वाटर लॉस कर सकते हैं. सो फॉर वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिशन रिटेंशन, ऑल दिस थिंग्स, एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब यही होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए सेल वॉल इज इम्पॉर्टेंट, राइट? ताकि वाटर लॉस ना हो बहुत ज़्यादा एंड वो रिटेन कर सके. ऑल्सो व्हाट इज द अनदर थिंग इज दैट पैरासाइट्स हो सकते हैं. ओके, पैरासाइट्स कैन कम and invade the cell easily when the cell wall is not present. पर जब cell wall present होता है, अंदर आना सेल का it's difficult. After a day, every type of infection whatever will occur mostly start from the cell. ठीक है, सेल को इन्वेट कर देगा तो they can start. जैसे आपने अगर वायरल इन्फेक्शंस देखा होगा, सो इट स्टार्ट्स विद दिस सेल. एंड ऑल्सो सेल में अगर कोई डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स चला जाता है, जैसे कोई टाइप का अगर केमिकल चला जाता है, तो वो सेल का जो ऑर्गेनिज है या फिर जो डीएनए है उसको भी खराब कर सकता है. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऐसे कुछ चीज़ें, केमिकल्स, दे कैन एक्चुअली destroy the cell. So all these things can be controlled with the presence of cell wall. So who is having cell wall? The bacteria are having, but it is primarily composed of peptidoglycan. ठीक है? And in fungi it is made up of chitin. Okay? And in plants the cell wall is made up of cellulose. Right? So see, both plants, I mean, three of them, bacteria, fungi, and plant cells, three of them are having cell wall, but the composition is different. So this can be a prospective question. जहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि जैसे one only, two only, three only, none. So bacteria and composition of its cell wall is what? It's peptidoglycan. When you are asked about fungi, it's what? It's chitin. And when you are asked about the plants, it's what? It's cellulose, right? So जो animals है who graze करते हैं, grazing the fields, what do they eat? है ना? What do they eat? They eat cellulose. जैसे कि goats हो गए, cows हो गए, है ना? What do they eat? They eat cellulose. This is their food, but human cannot break down cellulose.
इसीलिए हम लोग प्लांट का बार्क या ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, इज इट और नॉट, है ना। हम लोग प्लांट्स का बार्क या ऐसी चीजें जहाँ पे सेल्यूलोज का प्रेजेंस ज्यादा है वहाँ हम लोग नहीं खाते, बिकॉज वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, but the grazing animals can do it. So, now there is the cytoskeleton. The cytoskeleton is like the cell's internal scaffolding. देखो पहले तो हम लोगों ने ये देखा सेंट्रियल्स देखा, जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल का जब मिटोसिस हो रहा है, सेल जब डिवाइड कर रहा है तब उसको सपोर्ट दे रहा है, सो बोथ आइडेंटिकल सेल्स डॉटर सेल्स कैन बी फॉर्म। नाउ क्या है कि जो सेल है उसमें मैंने कहा एक साइटोप्लाज्म वाला मैट्रिक्स है, बट उसको भी तो पीछे कोई सपोर्ट चाहिए, है ना, ताकि उसमें जो ऑर्गेनेल्स है वो सही से फिक्स्ड रहे, एंड उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, एक एक मान लो प्रोटीन जा रहा है दूसरा उससे मतलब जाके कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है या जो आ रहा है चीजें इंफॉर्मेशन वो सारे प्रॉपरली फंक्शन करें, फॉर दैट थिंग यू नीड अ स्कैफोल्डिंग, दैट इज यू नीड अ फ्रेम, है ना, यू नीड अ स्केलेटन। जैसे हमारा बॉडी है, मान लो विदाउट स्केलेटन अगर होता है तो कैसा होता कि हमारी बॉडी कभी इधर चली जाती कभी उधर चली, सेम वे this can happen with cells too, isn't it? So that is why this particular thing, cytoskeleton, plays a very important role. तो skeleton से ही आपको पता चल जा रहा है, this is giving a structure, and cyto cell से related है। Cyto when we are using cytoplasm, right? So there is the cytoskeleton. It's like the cell's internal scaffolding or skeleton. It's made up of tiny protein structures that provide support, help the cell keep its shape and play a role in cell movement and division. Okay, right? Also the cell का जो movement होगा इसमें help करेगा ताकि उसका shape खराब ना हो जाए, उसका organism में problem ना जाए, and it also helps in division of cell, that is reproduction. It's the cell's framework even though it doesn't have a membrane like other parts inside the cell. So five हम लोगों ने देखा, membrane बिना, that is without membrane we have seen five organelles. So first was the ribosome, second is the centriole, third is the nucleolus, then the cell wall and the cytoskeleton. Okay, so this you have to remember without cell wall. Second is the type which has a single membrane organ. Single membrane मतलब एक ही membrane है, उसके अंदर पे the organelle is there inside the cell. और राइबोसोम का कैसा था कि वो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, without the membrane. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमने पढ़ा था क्या कि राइबोसोम फ्री फ्लोटिंग हो सकता है या ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी प्रेजेंट हो सकता है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट डू. While the rough endoplasmic reticulum (RER) has ribosomes on its surface and is involved in protein synthesis, obviously when the ER is there and it is having its, I mean, this ribosomes, so they will go for protein synthesis. After a day, the work of the ribosome is to go for protein synthesis, and the smooth endoplasmic reticulum is involved in the lipid synthesis. Now, what is lipid? Lipid is fat. सो जैसे कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें अगर ऐसे 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 आपका राइबोसोम्स लगे होंगे तो दैट बिकम्स रफ. ओके, सो दैट इज रफ ER. And what is the function of ribosome? Protein synthesis. When it is smooth, then it is involved in lipid synthesis. That is, when it is smooth with no ribosomes attached, then what it will do? It will do the fat synthesis. Fat is lipid. ओके, अंडरस्टैंड दिस. लिपिड का मतलब होता है फैट्स. जैसे लिपिड सॉल्यूबल मेडिसिन हम लोग बोलते हैं, है ना. तो कैसे हो सकता है, एक टाइप का मेडिसिन हो सकता है जो वाटर सॉल्यूबल हो, एक हो सकता है फैट सॉल्यूबल हो. तो बॉडी में फैट में वो मिलके फिर बॉडी में एक्शंस करता है. कुछ वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं. तो दैट इज समथिंग. सो रिमेंबर इट, लिपिड्स मीन फैट्स. ठीक है. Golgi apparatus or Golgi apparatus. So Golgi apparatus or Golgi body, it is also said, involves processing, packaging and distribution of molecules within or outside the cell. It consists of a series of flattened sacs. ठीक है, मतलब कि इससे क्या होगा, Golgi body से इसके थ्रू प्रोडक्ट्स जो है, मतलब सेल में क्या है कि सेल में जैसे भी सेड दैट वी आर प्रोसेसिंग व्हाट, वी आर प्रोसेसिंग सपोज प्रोटीन्स, वी आर प्रोसेसिंग सपोज फैट्स. तो उसको क्या करना पड़ेगा, सो इट इज
उसको प्रोसेस करना पड़ेगा कि इसके बाद ये वाला प्रोटीन आएगा, इसके बाद ये वाला फैट आएगा, उसको पैकेज करना पड़ेगा, देन उसको डिलीवर करना पड़ेगा आउटसाइड द सेल, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अलोंग विद राइबोसोम ने मैन्युफैक्चर कर दिया। कुछ जो फ्लोटिंग है उन्होंने कुछ अलग टाइप का प्रोटीन मैन्युफैक्चर करा। जो आपका स्मूथ ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपका फैट मैन्युफैक्चर करा। नाउ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स, आफ्टर द प्रोटीन्स, फैट्स, ऑल these are chemicals. Then what we will do, we will go into the Golgi apparatus, and what it will do, it will process it will pack it, and then it will distribute, deliver it जहाँ पे जरूरत होगी। Okay, so that is the function of Golgi apparatus. Then comes the lysosome. They are membrane-bound organelles that contain digestive enzymes. Very, very important. They break down waste materials and cellular debris. देखो, लाइसोसोम को एक्चुअली बोला जाता है सुइसाइड बैग्स ऑफ सेल्स। ठीक है, suicide bags of cell. First work which the lysosome do is that, first thing which the lysosome has is that the digestive enzymes. देखा है? Then what it is doing? It is doing what? Is that it is breaking down the waste materials. Cell में भी कुछ waste materials हो सकते हैं, some organelle is died और it got ruptured, ऐसी चीजें, तो उसको that is a waste product, right? तो उसको digestive enzyme के थ्रू वो kind of an acid is present in the lysosome, वो क्या करेगा, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लाइसोसोम में अगर पूछा जाए मेम्ब्रेन बाउंड, यस इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, बट इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज वायबल टू बी मेम्ब्रेन बाउंड। अगर नहीं होगा तो वो पूरा एसिड बाहर आ जाएगा, द सेल विल बी डिस्ट्रॉयड। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस लाइसोसोम नॉट ओनली ब्रेक्स डाउन द वेस्ट मटेरियल्स बट आल्सो द सेल्युलर डेब्रिस, है ना। ऑल्सो सपोज सेल मैलफंक्शन कर रहा है, सेल इज मैलफंक्शनिंग, मतलब सेल का जो एक्टिविटी है वो गलत हो गया, ठीक है, उसका डीएनए चेंज हो गया है, वो फंक्शन अलग कर रहा है जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना चाहिए, जो हार्मफुल है। देन व्हाट द लाइसोसोम विल डू इज दैट इट विल कंज्यूम इटसेल्फ, सुइसाइड, दिस सेल सुइसाइड, राइट। वो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू पूरा सेल को ही खत्म कर देगा, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग के चलते इट इज कॉल्ड एज द सुइसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, नाउ सी वैक्यूल्स इन एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, एंड प्लांट सेल में एक ही होते हैं। तो वैक्यूल में क्या होता है, वैक्यूल में होता है स्टोरेज होती है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल में स्टोरेज रहती है। जैसे मान लो कुछ टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, वेस्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल, एंड लाइसोसोम विल पुट इट नेगेट दैट दोज डेब्रिस अगर वो वेस्ट होगी। बट अगर प्रोटीन वगैरह होगी तो वो सब चीजें नहीं करेगा लाइसोसोम नेगेट, एंड इट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। सो वैक्यूल का मेन पर्पस क्या है, टू स्टोर मटेरियल्स। ओके, एंड लाइसोसोम का है टू क्लीन दी सेल। ओके, एंड वैक्यूल में नॉट ओनली प्रोटीन वगैरह स्टोर होगा बट ऑल्सो वेस्ट मटेरियल्स भी स्टोर, एंड दिस वैक्यूल इज प्रेजेंट in animal cells in small and numerous number. But in plant cells, if you see, it actually provides rigidity to the plant cell. एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और उसके थ्रू क्या होता है कि उसमें एक रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है, इट बिकम्स बिग एंड इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, अनलाइक इन दिस सेल्स ऑफ एनिमल्स जहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज। ठीक है, पेरोक्सीसोम, देखो इसमें एक चीज आप जरूर याद रखना, वैक्यूल वाला जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इट डज नॉट ओनली स्टोर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बट ऑल्सो वेस्ट मटेरियल्स। और लाइसोसोम का इससे डिफरेंस ये है कि लाइसोसोम नेगेट्स इट, लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है थ्रू इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, peroxisome. So peroxisomes are membrane-bound organelles involved in various metabolic processes, including the breakdown of fatty acids and the detoxification of harmful substances. So just आपको याद होना चाहिए, एक दो बार न्यूज आर्टिकल्स में मैंने देखा है, they were writing about peroxisomes. So just for this sake आपको बस याद होना चाहिए, there is another membrane-bound organelle, single membrane-bound. It is a organelle which is involved in the metabolic process. What metabolic process is? To break down fatty acids. मतलब कैसे है? There is production of lipids, and lipids से fatty acids type से कुछ production होगा. Now maybe it needs to be broken down. So that purpose is done by peroxisome. Okay, and then suppose there is a harmful substance, and
that needs to be detoxified, that is you need to negate it. So that work can also be, because you are seeing that it is doing a metabolic process, it's breaking down things. So it works in breaking down fatty acids or detoxification of harmful substances, right? चलो, नाउ सी देखो हम लोगों ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड देख लिया है, that is ER. Then we have seen then we have seen nucleolus. No, just a second. Nucleolus is not membrane bound. हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हमने देखा है ER. Okay. Then we have seen Golgi apparatus. Then we have seen lysosome, peroxisome, and the vacuoles. Right. So these are the 5. इसके पहले भी अपने 5 देखा था. Okay. We will just see once more so that confusion ना रहे. So first thing we saw was ribosome. Second was the centrioles. Third was the nucleolus, and the cell wall and cytoskeleton. ठीक है, इनका मेम्ब्रेन नहीं था. मेम्ब्रेन किसका किसका था? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus, lysosome, the vacuoles and the peroxisomes, right? So these are having membranes, right? Now what we will do, double membrane bound organisms. डबल देखो, एक तो हमने देखा कि मेम्ब्रेन ही नहीं है, एक का एक मेम्ब्रेन था, एक का है डबल मेम्ब्रेन बाउंड. So इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियस. So don't get confused. Nucleolus is a different thing and nucleus is a different thing. So nucleolus में कोई भी membrane नहीं था. It was having no membrane. But on the contrary, a nucleolus का work भी different है. What was its work? It was working for the purpose of production of ribosome. And nucleus का क्या work है? Nucleus में DNA स्टोर रहता है. सो दैट इज वाई प्रोटेक्शन इज इम्परेटिव. क्योंकि देखो, आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा आप समझ जाओगे. न्यूक्लियोलस में मेन क्या है? राइबोसोम प्रोडक्शन हुआ, उसको बाहर जाना है ना, बाहर चला जाएगा वो, और राइबोसोम प्रोडक्शन होते ही रहेगा, इसलिए उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, इट्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. बट न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए है. अब डीएनए तो बाहर अंदर करेगा तो वो खराब हो जाएगा, है ना, उसमें म्यूटेशंस आ जाएंगे. That is why this is double membrane bound. सबसे important part of a cell is the nucleus, जो control करता है हर activity को. That is why it is double membrane bound. Double security is in the nucleus. और राइबोसोम का क्या है? वो बाहर चला जाएगा, उसका प्रोडक्शन करते रहना है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस होता रहे. तो उसमें मेम्ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं थी. And that is why nature did not put a membrane in the nucleus, but it did twice a membrane in the nucleus. So nucleus is the control center of the cell, housing the cell's genetic material, as we said it. Genetic material, that is the DNA, and controlling cellular activities. It has a double membrane called the nuclear envelope. Okay? The nuclear envelope is very important, which separates the genetic material from the cytoplasm, right? Because otherwise the genetic material will be mutated, it will be destroyed. Now is the mitochondria. Okay? Mitochondria are often referred to as the powerhouse of the cell because they generate energy through a process called cellular respiration. So what does actually they produce? Why they are called the powerhouse? Because they produce the ATP, adenosine triphosphate. Okay, ATP is the currency of the body. Currency, energy currency. Okay, this is the energy currency. After a day, हम लोग जो खाते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस इज टू क्रिएट एनर्जी इन द बॉडी. एंड व्हाट इज द एनर्जी in the body? That is the ATP. Who creates it? Mitochondria creates it. And recently mitochondrial replacement therapy, उसके बारे में UPSC has asked an MCQ also 2-3 years down the line. And सोचो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है, suppose it has kind of issue in the mitochondria. Actually, see, genetic makeup, not only it is found in nucleus, but also some genetic makeup, that is some part of genes, DNAs, are found in mitochondria also. ठीक है. So mitochondria में जो genes मिलते हैं, अगर उसमें कुछ flaw है, ठीक है, उसके द्वारा क्या हो सकती है? जो न्यू बॉर्न होगी उसका कुछ ना कुछ बीमारी हो सकता है. So that is why if the mother is having mitochondrial issues, if the mother is having the gene which are not good for the baby, that is why we need to go for the replacement therapy. And that is why we are studying that mitochondria का purpose क्या है. What it does, it produces ATP, that is adenosine triphosphate. And what is it? The cell's currency, the energy currency of the cell. Okay, chloroplasts in plant cell.
So chloroplasts are involved in the photosynthesis, the process by which plants convert sunlight into energy. We know it, right? Plants do photosynthesis. कैसे करते हैं? एक टाइप का आपका ऑर्गेनली है और इसका मतलब वर्क क्या है? क्लोरोप्लास्ट का देखो बहुत टाइप के ऐसे होते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर एक्चुअली हैविंग क्लोरोफिल, right? So this provides the plant the green color. Okay, so chloroplast में जो chlorophyll है जिसके थ्रू photosynthesis हो रहा है, that is making sunlight into energy. देखो after this देखो energy is important. यहाँ mitochondria है और यहाँ chloroplast है, so they are also making energy, right? So this energy particularly is produced by the chloroplast in the plant cell. And किसके थ्रू? By the photosynthesis process. वो किसके थ्रू होता है? By the presence of chlorophyll. नाउ देयर आर सम प्लांट्स जहाँ पे आपको ये कलर नहीं दिखेगा. ओके, सो उसका जो पिगमेंट होता है दैट इज नॉट इन द क्लोरोप्लास्ट. ओके, दैट इज एमाइलोप्लास्ट हो सकता है अगर फैट वाला हम लोग देखेंगे. सो ऐसे ऐसे डिफरेंट होती है, बट दिस इज ऑफ रेलिवेंस, यू नीड नॉट टू डेल्व इनटू मच डेप्थ. दिस इज इट. सो दिस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट. नाउ इज द प्लास्टिड्स. व्हाट आर प्लास्टिड्स? इंपॉर्टेंट. They are double membrane bound organelles found in the cell of plants and algae. They are involved in various cellular processes including photosynthesis. They synthesize and storage of pigments and the storage of starch. So plastids are a diverse group of organelles that includes chloroplast, chromoplast, amyloplast among others. So जैसे मैंने आपको कहा कि chloroplast का function क्या था? To produce what? Just a second. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या था? इट्स फंक्शन वाज टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना, बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल. नाउ इसमें और भी चीजें हो सकती है, क्रोमोप्लास्ट हो सकती है, अमाइलोप्लास्ट हो सकती है, ठीक है, विच इज फॉर द फैट सिंथेसिस. सो ऑल दिस थिंग्स मेक अप द प्लास्टिड. सो इसका डबल बाउंड एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर बहुत टाइप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्लूड हो जाएंगे. सो क्लोरोप्लास्ट इसमें से एक है. So that is it about it. So plastids में there are chloroplast, amyloplast and chromoplast. Chromoplast also give a different color to the plant, unlike green color given by the chloroplast. ठीक है. So difference between plant and animal cells. ये plant और animal एक साथ इधर ऊपर हो गया है. Okay, but ठीक है, हम लोग इससे ही पढ़ लेंगे अभी के लिए. देखो ऑर्गेनेलिज, देखो डिफरेंस समझना जरूरी है क्योंकि हमने ऑर्गेनेलिज तो देख लिया है, बट डाउट्स होंगी. जैसे प्लास्टिड्स हमने देख लिया या क्लोरोप्लास्ट देख लिया, क्या वो एनिमल सेल में होगी? नहीं होंगी. ग्रीन नहीं है हम लोग. ऐसे हल्क वल्क है तो अलग चीज है, बट नॉर्मल हम लोग तो हल्क है नहीं, सो ग्रीन तो हम लोग लगते नहीं है. सो दैट इज वाई वी आर नॉट हैविंग क्लोरोप्लास्ट, है ना. सो नाउ डिफरेंस को समझेंगे ना तो चीजें विल बिकम और क्लियर. सो सेल वॉल, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. यस यस, रिजिडिटी पढ़ा हमने, you know it. Is it present in animals? No. Animals में present होता तो इतना soft थोड़ी होता, तो plants जैसे strong होता कि नहीं. चलो plastids obviously present. chloroplast है, chromoplast है, different color के plant आ रहे हैं भाई. कोई green है, कोई red है, कोई ऑरेंज है, कितने सारे कलर्स के प्लांट आते हैं. उनके जो फ्लावर्स होते हैं, ओके, उसमें क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट होंगे डिफरेंट कलर्स के. वेजिटेबल्स में क्रोमोप्लास्ट होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स के हैं. ओके, जैसे कि आप कैरोट्स देख लो, उसमें डिफरेंट कलर का है ना, इट्स नॉट ग्रीन. सो व्हाट इट इज हैविंग क्रोमोप्लास्ट. एंड एमाइलोप्लास्ट होता है जो फैट स्टोरेज कर रहा है, ठीक है. तो दोज आर द थिंग, बट एब्सेंट इन एनिमल्स. हम लोग तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, हम लोग प्लांट को खा लेते हैं, राइट. दैट इज द पार्ट ऑफ द फूड चेन. वी आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी में आ सकते हैं, right, but they are the primary producers. Plants are the primary producers. Central vacuole, large central vacuole बड़ा वाला है rigidity देने के लिए. हमारे पास small है. Purpose क्या था vacuole का? To store waste as well as to store important materials also, जैसे प्रोटीन वगैरह हो. So बहुत सारा फंक्शन है. And plant में क्या करता है? rigidity. Shape often fixed and rectangular. तो जो ये शेप सेल का है, ठीक है, शेप ऑफ द सेल फिक्स्ड होती है. जैसे सेल वॉल हो जाएगी तो फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर टाइप से होगा ना. जैसे कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने जब ऑब्जर्व किया होगा, जस्ट सर्च द इमेज इन द गूगल,
मतलब आपको कॉर्ड का वो मिलेगा कि कैसे दिखता है, ठीक है, ऐसा हनीकम स्ट्रक्चर टाइप से होता है, ऐसे टाइप से कुछ दिखता है। सो दे आर ऑफन फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर, फिक्स टाइप से होगा या रेक्टेंगुलर टाइप से होगा, मतलब जो भी होगा फिक्स्ड होएगा फ्लैट। एनिमल में क्या है, राउंड और इरेगुलर, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसे हो जाएगा, ऐसे तुम्हारा नर्व सेल तो ऐसे ऐसे हो सकता है, डेंड्राइट वाला जो डेंड्रॉन्स है वो ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर नॉट regular, these are irregular kind of cells. Lysosomes, it is rare, see it's not absent but it is rare in plants, but in our cell it is present and we can directly go for suicide of cells if necessary, okay। So ताकि वो पूरे बॉडी को कॉन्टेमिनेट ना कर, जैसे ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं, कैंसरस सेल्स हो सकते हैं, दो सेल्स हो फॉर डेथ, ऑटोमेटिक डेथ, राइट। क्लोरोप्लास्ट, obvious reasons, and the latter. We don't do photosynthesis. Mitosis, open mitosis, and it is closed mitosis. So open mitosis का मतलब ये होता है, the mitosis जब होता है, then the nucleus opens. But in case of animals, it is closed. The nucleus is still closed even when the mitosis is going on. Doesn't open up. The envelope doesn't open up. So this is the difference between these two. क्योंकि we are even more evolved, है ना, as per Darwin we are even more evolved than the plants, and उसके चलते क्या होगा, जो क्लोज मिटोसिस होगा, देयर इज वेरी रेयर चांस कि जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि मिटोसिस आई हैव टोल्ड यू लाइक 4 or 5 times right now that mitosis has to produce two similar genetically make up daughter cells, similar, दोनों में changes differences नहीं होंगे, unlike in the meiosis, meiosis, in that case what is happening, meiosis में क्या है, meiosis में 4 daughter cells form हो and चारों का genetic makeup would be different, why, that is because of the formation of gametes, है ना, स्पर्म सेल, ओवा, ऐसे जो होंगे गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज ऑकरिंग इन मियोसिस, एंड मिटोसिस इज ब्रेकेज, जैसे स्किन फट गया, एक्सीडेंट्स हो गए, देन व्हाट विल हैपन इज सिमिलर मेकअप के जीन्स चाहिए हमें, है ना, सो देन इज द मिटोसिस, ओके। So in mitosis in our body, in the eukaryotes, it is not open. Now cilia and flagella, it's absent in plant and it is present in some animals. So cilia and flagella are things. Cilia and flagella का work क्या होती है? To move, right? And cilia के through what it does? It attracts food. ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक मान लो ये सेल है, इसमें ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जैसा सीलिया। तो ये क्या करेगा, कुछ कुछ मान लो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल इसको चाहिए या फूड पार्टिकल हो, तो ये इसको ऐसे यहाँ तक आएगा एंड इसको यहाँ पे एनगल्फ कर लेगा, दिस इज द वर्क ऑफ सीलिया। एंड फ्लैगेला का क्या है, फ्लैगेला ऐसा बड़ा सा होगा और इसका वर्क क्या होगा, उसका वर्क होगा मोटिलेटिंग, मतलब अगर सेल को मूव करना, सो दिस इज द वर्क। सो कुछ एनिमल सेल में ये होता है, कुछ में नहीं होता। नाउ योर वर्क इज टू फाइंड इज देयर any cell in human body which has cilia, क्या ऐसा कोई भी सेल है ह्यूमन बॉडी में जहाँ cilia है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, और क्यों है, अगर है तो क्यों, इफ यस देन व्हाई, इसका वर्क क्या है, ओके, सर्च इट एंड इन द कमेंट, राइट इट इन द कमेंट, आई वांट टू सी, ठीक है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो सी देखो हमारे बॉडी में जब हम लोग कुछ खाते हैं तो स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट, अगर वो यूज नहीं हो रहा पूरा, तो दोनों का स्टोरेज जैसे होगा, तो दोनों का स्टोरेज का प्रोसेस इज डिफरेंट, एंड सिंस इट इज डिफरेंट, व्हाट हैपेंस इज दैट द टाइप ऑफ द carbohydrate chemical created is different. So in case of plants is starch and in case of animals is glycogen,
ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। ब्रीफ में हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे कि एनिमल्स में और प्लांट्स में जैसे स्टार्च बन रहा है या यहाँ ग्लाइकोजन बन रहा है तो इसका प्रोसेस क्या है। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेसेस होते हैं वो दोनों को एक बार हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे, राइट। सो दिस इज इट, याद रखना है प्लांट्स का स्टार्च एंड एनिमल्स का ग्लाइकोजन। चलो, नाउ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। First thing is the culture meat. It is also called as lab grown meat, cell based meat or clean meat. तीनों नाम याद रखना है, तीनों चारों नाम जो है क्या है, कल्चर मीट, कल्चर कर रहे मीट का, और इट इज कॉल्ड एज सेल बेस्ड, सेल से कल्चर हो रहा है, और इट इज कॉल्ड एज क्लीन मीट। क्लीन मीट क्यों, क्योंकि इसमें देयर इज नो, इसमें कुछ हत्या नहीं हो रहा है किसी भी जीव का। ओके, सो इज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो, मतलब लैब में, इन विट्रो मतलब लैब में कल्टीवेशन ऑफ एनिमल सेल्स रादर दैन बाय ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स इन्वॉल्विंग रेजिंग एंड सॉर्टिंग एनिमल्स। रिसेंटली क्या होता है कि लाइव स्टॉक्स रखते हैं लोग एंड दे गो फॉर डायरेक्ट स्लॉटर, सो दैट इज काइंड ऑफ एथिकल क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। Recently, if you have seen in the news like PETA, PETA, who actually work for the welfare of animals, they have raised this question that हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, राइट, एंड एथिकली भी हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, सो इज इट करेक्ट टू गो फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स और नॉट। सो दिस इज अ हॉट डिबेट, एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। सो साइंटिस्ट व्हाट दे डिड इज दैट, चलो हम लोग ऐसा कुछ करते कि डिबेट में शायद से एक फुल स्टॉप आ जाए नेगेटिव में, उसके चलते दे वेंट फॉर द कल्चर में थी। तो इसमें क्या होगा कि लाइफ स्टॉक रख के उसको मारेंगे नहीं, बट क्या करेंगे, उससे थोड़ा सेल ले लेंगे और उसी से लैब में उसका सेल प्रोडक्शन कर लेंगे, उसका ऑर्गन्स प्रोडक्शन कर लेंगे, फिर खा लेंगे। तो हाउ इज इट ऑकरिंग? द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ एनिमल सेल such as muscle cell, providing them with the necessary condition to multiply and growth in a controlled। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे ये मान लो एक एनिमल हो गया, इससे कोई सेल लिया गया एंड यहाँ पे कोई, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेट मार्केट, ठीक है, वहाँ पे क्या देंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग सेल जो कल्चर हो सके ऐसा न्यूट्रिएंट देंगे। और सेल जब हम लोग लेंगे तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कोई जो भी सेल ले रहे हैं मसल सेल जैसे कुछ कोई सेल ऐसा है, सो उस सेल में हम लोग क्या मतलब दैट सेल्स शुड बी अ काइंड ऑफ अ स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सके। ओके, तो स्टेम सेल को हम लोग एक ब्लॉक में रखेंगे, न्यूट्रिएंट ब्लॉक, एंड देन सेल को एक्सपांड करते रहेंगे, ग्रोथ होता रहेगा, है ना। तो उसको ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, ऐसे स्कैफोल्ड करके कॉन्स्ट्रक्शन होगा एंड देन प्रोडक्ट प्रोसेस। Okay, so this is the purpose. So this is how we can go for culture because after a day सेल में ऐसे हमने पढ़ा मिटोसिस हो रहा है ना, मिटोसिस हो रहा है, उसी से सेल बन रहा है, दो बने, इससे और दो बने, ऐसे ऐसे कर करके जो पार्ट को हम बनाना चाहते हैं उसका हम लोग मीट बना लेंगे, ये जानवर बच्चे भी खुश और हम लोग भी खुश। तो दिस इज द वे कल्चर्ड मीट विल हैपन। नाउ इसमें बहुत सारा ऐसे डिबेट्स हुए हैं, विल इट टेस्ट लाइक द सिमिलर वे एंड अदर थिंग्स, सो यस इट विल डू, क्यों नहीं, क्योंकि आप एक चीज सोचो, द प्रोसेस इज सेम, isn't it? This is what happens in the human body. ओके, एंड इट इज क्लीन ऑल्सो, मतलब डिजीज वगैरह होने का भी इसमें चांसेस नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू, है ना, ऐसे जो चीज़ें होती है, एंड देन द बर्ड फ्लू, चिकन खाने से स्वाइन फ्लू, पिग्स का पॉर्क खाने से, तो ये सब चीज़ें जो है बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड मीट, सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी सेफ टू ईट ऑल्सो, इट्स वेरी वेरी सेफ टू ईट ऑल्सो, है ना। एंड एनिमल का कंसर्न जो है टू कीप देम सेफ, टू कीप देम देयर राइट्स ऑफ लाइफ, सो दोज थिंग ऑल्सो विल बी प्रोटेक्टेड। सो मेन्स में अगर इसको आपको पूछा जाए तो आप ये तो लिखोगे द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, एनिमल का राइट्स लिखोगे, ऑल्सो विल सी कि जो जूनोटिक्स है उससे हम लोग बच सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली कोविड, what was the reason of COVID is still unknown. Some places it was said bat, and then it was said कि pangolin से आया, so think eating pangolin, eating bats also caused Ebola. So हम लोग अगर ऐसे sources से ना जाए, rather we just take this cell and go for that. So zoonotic से हम लोग बच सकते हैं because this particular set of cells are not having bacterial or viral infections. These are clean cells. Also, what is the other thing is that जो कल्चर होता है, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक कल्चर होता है उसके चलते बहुत हाई अमाउंट में CH4 रिलीज होता है, एंड दिस इज अ ग्लोबल
warmer, global warmer potential, enforcing global climate enforcing. Okay, because you can understand, आप इतना लाइफ स्टॉक रखोगे, सो उसका जो खाना है एंड देन द वेस्ट मटेरियल्स उसके चलते बहुत अमाउंट में CH4 मीथेन गैस निकलता है एंड दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग लाइफ स्टॉक रखने से. ओके, बिकॉज आफ्टर अ डे उनका जो कल्चर होता है उसके थ्रू यही सब चीजें होता है एंड देन दी फॉलो एंड अदर थिंग्स, सो वी कैन वर्क ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, isn't it? So these are the things. And also आपको पता होगा कि एनिमल्स को ग्रो कराने के लिए बहुत टाइप के केमिकल्स दिया जाता है जैसे एंटीबायोटिक्स, ताकि उनको डिजीजेस ना हो. एंड देन दे आर गिवन अदर टाइप ऑफ थिंग्स लाइक गाय का जो मिल्क होता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन दिया गया जाता था, अभी भी कुछ जगह इलीगली दिया जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स कैन ऑल्सो बी लेसन बिकॉज आप लैब में कल्चर कर रहे हैं एंड आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि यू डोंट नीड टू प्रोवाइड दोज टाइप ऑफ थिंग्स. आप एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो इन अ कंट्रोल, मतलब क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शंस ऐसी चीज़ें नहीं होंगी. इट्स रेयर, है ना, एंड दैट इज वाई यू कैन गो फॉर दिस. नाउ see the cellular and molecular biology in collaboration with National Research Center on Meat, has initiated research aimed at producing meat through cellular agriculture or cell sourced from animals and latter cultivated into meat. So ये भी आप लिख सकते हैं in your answer. And also if question comes in the prelims, आपको याद होना चाहिए इस चीज, that National Research Center on Meat with the collaboration with cellular and molecular biology are working towards making and demonstrating the process of making artificial meat. It can also be called as cell-based meat or clean meat, which will be nutritionally equivalent to conventional animal meat. This is very very important because they are same. The taste, looks, and smell of the cell-based meat will be exactly like the real meat. Scientists say this is new method of producing meat would revolutionize food system and can address concerns related to food security, environment sustainability, and animal welfare. So, environment we talked about CH4 wala cheese. Animal welfare is definitely here talked about CH4 like methane. You can write in exam as methane. It is a global climate warming enforcers, and the food security one, because you are not killing animals and you are having as much as production you want without killing animals. तो आप जितना लैब बनाओगे आप कर सकते हो प्रोडक्शन उसका, एंड छोटे सी जगह में प्रोडक्शन हो जाएगा. आप एक पूरा इतना बड़ा एनिमल रखो, वहाँ पे आप छोटा सा जगह पे इंक्यूबेटर में रखोगे, stack of meat is getting created, right? Export import जो हम लोग करते हैं, this type of meat has to be exported, this type of meat is to be imported, ये सारी चीज़ों में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. We can have each kind of meat, and that too without being violent, without being a climate enforcer, without being causing problems to the food security. Okay, and protein is a big source, and there are people जो think करते हैं that eating non-veg is a violent thing, so that is why they do not eat. So उनके लिए भी this is a provision that they can go for this. Okay, this is something. Now see, human cell atlas. Scientists map more than a million human cells to understand disease genesis accurately. The initiative can transform our understanding of the 37.2 trillion cells in the human body. This undertaking is largely than the Human Genome Project. ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट था जहाँ पे जीन, ह्यूमंस का जो जीन है उसको ट्रैक किया गया था, टाइप्स ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस डिफरेंट. बट दिस इज इवन बिगर दैन द ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो सेल्स है 37.2 ट्रिलियन सेल्स, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें डिफरेंसेस क्या है. जस्ट नॉट द DNA बट द टोटल सेल. ओके, an international organization involved in the mapping and understanding of the genes of human beings pointed out. But the Human Genome Project was an international organization and a project that did what? They actually assess the types of genes available. What will the Human Cell Atlas cause? Human Cell Atlas will see 37.2 trillions of cell in the human body, and what will they do? They will see the genesis, the diseases, the maturity, and everything possible inside this cell. Because right now, this project, the Human Genome Project, was just for the DNA part, but right now this Human Cell Atlas will check every single thing, and we can see the disease markers, किस protein का
आई मीन ट्रांसक्रिप्शन होने से अ पर्टिकुलर डिजीज इज ऑकरिंग, ऐसी चीजें. ओके, सो माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT. This was asked in the question. You may get question on lab meet or human cell atlas also, and this has already been asked. I think this has been asked twice in the exam. So it is a medical technique designed to prevent the transmission of mitochondrial disease from mother to child. Mitochondrial disease is genetic disorder caused by mutations in the mitochondrial DNA, mtDNA. Let's say not only the nucleus but the mitochondria has some kind of DNA in it. It is called mtDNA, which is inherited exclusively from mother. So UPSC asks that can mother cause it? Yes, only mother cell का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसी से बच्चा को जो सेल बनेगा, फर्स्ट सेल जिससे फीटस बनेगा, उसमें अगर वो डिजीज मतलब वो डीएनए चला गया, सो देन वो इनहेरिटेड डिजीज हो जाएगा. वो पापा से, दैट इज फादर के साइड से नहीं जाता है. ओके, जस्ट गोज फ्रॉम द मदर्स साइड, द माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए. मतलब बी इट गुड डीएनए, बी इट बैड डीएनए, इट विल गो फ्रॉम द मदर साइड. ओके, सो दिस पर्टिकुलर थीम हैज टू बी स्टॉप्ड. हाउ इट वाज स्टॉप्ड? देखो, दिस शोज यू दी पिक्चर. पहले हम लोग पिक्चर को एक बार समझ लेते हैं. अनफर्टिलाइज्ड मदर एग विद एबनॉर्मल माइट्रोकॉन्ड्रिया. मतलब इसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है इसमें ऑलरेडी डिफेक्ट्स है, डिफेक्टेड. ठीक है, डिफेक्ट्स है इसमें. तो यहाँ हम लोग गए स्पिंडल एसोसिएटेड क्रोमोसोम रिमूव फ्रॉम द मदर्स एग. सो इसमें क्या किया हमने, जो डीएनए है मदर्स एग से वो हमने रिमूव कर दिया. अब क्या है कि एक दूसरी औरत है, शी इज डोनेटिंग द एग. ठीक है, एक तो है जिसको जिसको चाहिए कि मेरे जीन का बच्चा हो, और एक है कि शी इज जस्ट ए डोनेटर. सो उसने क्या किया, शी गिव्स द अनफर्टिलाइज्ड डोनेटेड एग. सो इसमें क्या हुआ, स्पिंडल एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम रिमूव. मतलब एक में क्या हो रहा है, एक में आपका न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है उसको रिमूव कर दिया, जो मेन मदर वाला है. और जो आपका डोनर का है, सॉरी, डोनर का जो एग है उससे हम लोग क्या रिमूव कर देंगे, उससे हम लोग न्यूक्लियस का जो जीन है, जो जीन मेकअप होगा बच्चे का, वो वाला रिमूव कर देंगे. बस उसका माइट्रोकॉन्ड्रियल वाला पार्ट को रहने देंगे. देन इन दोनों को हम लोग फ्यूज कर देंगे. राइट, दैट इज जो मदर है, जो मेन पार्टी है जिसको अपना बच्चा चाहिए, मदर डोनर, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो यहाँ है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो यहाँ है. और इसका जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है, एम्प्टी डीएनए, वो यहाँ है. दिस इज द एम्प्टी डीएनए. एंड इनका जो क्रोमोसोम है, दैट इज द जेनेटिक मेकअप जो आपका न्यूक्लियस में था, वो यहाँ है. ओके, then what we'll do, we will take a sperm and infuse it. Okay, and then what will happen, there is the formation of the body, that is first cell, and then it is formation with of the zygote, impaired with normal mitoc and maternal genes. ठीक है, तो this is then will form to the zygote. Understood? But remember, it just happens from the mother cell. So mother का मेन पार्टी का जिसको अपना बच्चा चाहिए, who wants their genetic makeup to be carried on, उसका हम लोग. इसमें देखो और एक बेनिफिट है, ये जो बच्चा है, सपोज दिस बिकम्स अ फीमेल चाइल्ड, है ना, तो उसका जो नेक्स्ट प्रोजेनिटर होगा वो भी हेल्दी होगा, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग द हेल्दी माइट्रोकॉन्ड्रिया टू दैट बेबी. एंड इन केस उसका मदर वाला माइट्रोकॉन्ड्रिया जाता तो वो डिजीज परपेचुअली चलते रहता है, बट इन दिस केस इट विल नॉट हैपन. सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट कि जो नेक्स्ट जनरेशन हो गए दे विल ऑल्सो बी डिवॉइड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज. सो हम लोग ऐसे करते रहेंगे, जिसको भी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज है, तो एक टाइम पे हो सकता है यू कैन कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिजीजेस related with mitochondria. So your work here would be to check what are the diseases that can occur if there is the defect in mitochondria. Check it. In next class I will also discuss, but you also must check it and write in the comment section. Okay. Then MRT involves replacing the defective mitochondria in the woman egg or embryo with healthy mitochondria from the donor. You have understood it? There are different techniques. Okay. For MRT एक हो गया मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर. इसमें क्या है, इन दिस टेक्निक जो हमने देखा दैट वाज एक्चुअली मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर.
In this technique, the nucleus from the mother sex is transferred to a donor egg that has its nucleus removed. जो हमने देखा न्यूक्लियस हट गया था, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें था. The resulting egg contains nuclear DNA from the mother and the mitochondrial DNA from the donor. फिर उसके बाद उसको फॉर्म से फर्टिलाइज कराएंगे. राइट. दूसरा जो है वो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होगा, इसमें दोनों सेल को, दोनों मदर एंड डोनर दोनों को पहले हम लोग स्पर्म सेल से फर्टिलाइज कर ले रहे हैं. ठीक है. देन जो प्रो न्यूक्ली है, अर्ली स्टेज ऑफ न्यूक्ली, दोनों से हम लोग हटा देंगे. ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल वाला है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रियल वाला है. ठीक है, और ये आपका प्रो न्यूक्ली मतलब जो जेनेटिक मेकअप है, और ये मदर का है, ये डोनर का. सो प्रो न्यूक्ली इज द अर्ली स्टेज ऑफ न्यूक्ली और बोथ एग्स आर देन रिमूव्ड. तो क्या करेंगे, दोनों का ही, मदर और डोनर दोनों का ही आफ्टर मतलब इन्फ्यूजन हो गया है, दोनों का ही हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाला रख दिया है और उसका जो जेन है उसको हमने निकाल दिया है. ठीक है, तो ये मदर का हो गया और ये डोनर का हो गया. ओके, दिस इज द मदर्स जेनेटिक मेकअप, द न्यूक्लियस से जो आता है, दिस इज द डोनर्स क्रोमोसोम. Then what we'll do is then, and the donor pronucleus is inherited into the mother's egg. Okay, so donor का जो pronucleus है उसको हम लोग mother egg में inherit कर देंगे. Okay, because we want it to be diseaseless, right? Right. The goal of the mitochondrial replacement therapy is to prevent the transmission of mitochondrial disease, which can cause a range of serious health issues, including neurological disorders, muscle weakness, and organ failure. So, what type of disease? Names of disease you have to write associated with mitochondrial replacement therapy. Because already UPSC has asked about the procedure and other things. So, it may be possible that they ask you about the types of diseases caused by it. And also, you should know what is the present context of the data. India में MRT कितना लोगों में है, how many, but population of India suffers from this. Okay, so that we can understand कितना हम लोग benefit इससे कर सकते हैं. Alright, now see Alzheimer's disease. Alzheimer में क्या होता है, Alzheimer में इंसान सब कुछ भूल जाता है. The disease which causes mostly with the aging of a person, and इसमें क्या होता है, जो brain का cells है, right, brain cells are the cells which keep us remember, which help us remember things. But Alzheimer's में क्या होता है, we forget things. Okay, so problem with the problem with the brain's energy supply could be a cause. So मान लो कि supply of energy में नहीं हो, what happens in case of stroke is the supply of energy stops, and that is why brain का degeneration हो जाता है stroke में. वो तो सडनली हो जाता है, बट अल्जाइमर में धीरे धीरे हो रहा है. सो साइंटिस्ट सेड कि मे बी अल्जाइमर में भी कॉज वही हो, दैट देयर इज द लैक ऑफ ब्रेन्स एनर्जी सप्लाई, because brain also has cells and it also has mitochondria, but maybe those mitochondria and those cells are not producing enough ATP, adenosine triphosphate, for the cell, and the cell currency is missing. So the recent article in New Scientist illustrates an idea which could be important in the field of brain health. This article highlights a alternate theory that damage to the mitochondria, the energy producing structures within cells, could actually be the cause of Alzheimer's. As I said, your brain causes what? Brain causes different cells, and they also have mitochondria. That is, the empty DNA is present, and that leads to the production of adenosine triphosphate, energy currency है. And अगर मान लो कि इसका जो DNA है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन, जैसे हमने लास्ट में डिजीज देखा, उसमें हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखे थे, राइट. सो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कब होगी, जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या जो आपका नर्वस सिस्टम है उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, राइट. सो दिस पर्टिकुलर थिंग Alzheimer can develop maybe in faster with people having the defected empty DNA. Also mitochondria में भी अगर कुछ issues आ जाते हैं, then also this can cause Alzheimer, क्योंकि production of energy, that is production of ATP, is not happening, right. So this was it for today, and I have asked you certain questions. Thank you. उसको definitely आप लिख के भेजो, क्योंकि see, until unless you don't understand the basics, आप ये सारी चीज़ें भी नहीं समझ पाते. Now we know what is the work of mitochondria.
and why we need to replace it. All these things are clear with us. How sale-based meat can be created. You know? We will do some questions about it also, and stay tuned for more updates. And definitely do write the questions I have asked. Thank you.